تشریف رکھیے اور سب کو برکت دے۔ ایک دم سے پرستش کے بعد میسج کے لیے آ جانا یہ آپ کی دعاؤں کا ہی رزلٹ ہے۔ ابھی تو میری سانس بھی برابر نہیں ہوئی، لیکن خداوند کا شکر ہے کہ آج ہم خدا کے کلام سے دیکھیں گے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے پہلا سیموئیل اور اس کی ہم دیکھیں گے 17 باب، پہلا سیموئیل اس کا 17 باب اور اس کی 11 آیت۔ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کے جلالی مہان اتم قدوس نام میں تمام چرچ کو، تمام کلیسیا کو اور تمام سننے والے بہن بھائیوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی شاندار ہوں گے، زبردست ہوں گے۔ ہم آپ سب کا سواگت کرتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں آتے ہیں اور ہمیں آپ کو دیکھ کر خدا کی شکر گزاری کا موقع ملتا ہے۔ آج جو ٹاپک ہے وہ ہے تیرا دشمن ایک پتھر کی مار ہے۔ کیا ہے؟ تیرا دشمن، ایک دوسرے کو بولیے۔ اگر تو آپ ایمان کے ساتھ اس بات کو اپنے دل سے بولیں گے، روح اور سچائی ایمانداری کے ساتھ، تو پھر یاد رکھیے گا تیرا دشمن ایک پتھر کی مار ہے۔ تیرا دشمن، اونچی آواز میں بولے، تیرا دشمن، تیرا دشمن۔ یہ تقریباً 5 سے 6 دن پہلے اس کی جو ایڈورٹائز ہے، یہ سوشل میڈیا پر اس کا فلائر، اس کا پوسٹر اور اس کا ویڈیو کلپ جو ہے یہ چل رہا ہے۔ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اس سنڈے ہمارے چرچ کے جو میسج ہوگا وہ یہ ہے کہ تیرا دشمن ایک پتھر کی مار ہے۔ کسی کا دشمن ہے، کسی کا دشمن؟ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، ایمانداری کے ساتھ۔ ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ میرا بھی دشمن ہے، ہم سب کا دشمن ہے، اور وہ دشمن کون ہے؟ اونچا بولیے، کون ہے؟ تو آج میں ایک ایسے دشمن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو ہر روز آپ کو آ کر للکارتا ہے، ہر روز آ کر آپ کو پریشان کرتا ہے، آپ کو گمراہ کرتا ہے، اور آپ کا جو لیول ہے، آپ کی جو عزت ہے، آپ کا جو معیار ہے، آپ کی جو پوزیشن ہے، وہاں سے تجھے وہ دشمن نیچے گرانا چاہتا ہے۔ لیکن آج خدا کا کلام مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے پاور دینا چاہتا ہے، ہمیں حوصلہ دینا چاہتا ہے، ہمیں طاقت دینا چاہتا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ نکالیے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، پہلا سیموئیل اس کا 17 باب اور اس کی ہم 11 آیت دیکھیں گے، اور بھائی رشید پڑھنے میں رہنمائی کریں گے۔ جب پبلک سے، جب کلیسیا کے لوگوں سے پوچھا جائے تو تمام آڈینس جو ہے رپلائی کریں، تو اس کیمرے کا منہ آڈینس کی طرف کیا جائے، لوگوں کی طرف، تاکہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے لوگ جو اس کو دیکھیں گے یوٹیوب پر، فیس بک پر، ان کو پتہ چلے کہ یہاں پر خدا کے لوگ موجود ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ چرچ خالی نہیں ہے بلکہ خدا کے لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو سبھی بولیں گے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر میرے ساتھ نعرہ لگائیں گے، ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ تو آئیے ہم اپنے وچن کی طرف آتے ہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں آج آپ اپنے دشمن کو گرانے والے ہو۔ جب ایسا بولا جائے اونچی آواز میں بولا جو ہاللیلویا، آج آپ اپنے دشمن کو گرانے والے ہو۔ تو آئیے بھائی رشید کے ساتھ مل کر ہم اس چیپٹر کو پڑھیں گے۔
اور جب ساؤل اور سب اسرائیلیوں نے اس فلسطی کی باتیں سنی تو ہراساں ہوئے اور نہایت ڈر گئے، اور داؤد بیت لحم یہودا کے اس فراتی کا مرد کا بیٹا تھا جس کا نام یسی تھا، اس کے 8 بیٹے تھے۔ وہ آپ ساؤل کے زمانہ میں لوگوں کے درمیان بھولا اور عمر رسیدہ تھا۔ میرے عزیزوں، ابھی صرف آپ کا دھیان میری طرف ہونا چاہیے۔ جب کنیکشن دونوں انسانوں کا مل جاتا ہے، مینس کہ جب کنیکشن جو ہے خدا اور انسان کا ملتا ہے تب معجزہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دھیان، آپ کا خیال، آپ کی باتیں، آپ کی سوچ وچار، آپ کے وچار کسی اور جگہ پر ہو اور آپ کا وجود چرچ میں ہے، آپ جس طرح سے خالی آئے ہو خالی ہی جاؤ۔ لیکن اگر آپ ایمانداری کے ساتھ، روح اور سچائی کے ساتھ خدا سے ڈرتے ہوئے اور اس کا خوف مانتے ہوئے، خدا کے کلام کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ خدا کے کلام کو سنیں گے تو آپ کبھی بھی نراش نہیں ہوں گے، کیونکہ آج تیرا شترو، تیرا دشمن جو ہے وہ تجھے للکار رہا ہے، وہ تجھے پریشان کر رہا ہے، تجھے بیماری کی صورت میں، قرضے کی صورت میں، لعنتوں کی صورت میں، مخالفت کی صورت میں، انگلیاں اٹھانے کی صورت میں تیرا شترو تجھے للکار رہا ہے۔ تو کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے، تیرا شترو آ کھڑا ہوتا ہے، تیرا دشمن آ کھڑا ہوتا ہے اور تجھے شکست دیتا ہے، اور تو شکست کھاتا ہے کیونکہ تو اپنی مدد سے آتا ہے، تو اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے، تو اپنا زور لگاتا ہے، تو اپنا دماغ لگاتا ہے، تو اپنی پاور کو استعمال کرنا چاہتا ہے، تو اپنے ریفرنس کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اپنے کنیکشن کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تب تیرا شترو آئے گا، للکارے گا، تیرے دروازے پر نوک کرے گا اور کھڑکائے گا، چوک میں کھڑا ہو کر تجھے پکارے گا، ارے نکل باہر، اور تو اندر چبڑا رہے گا، چپکا رہے گا، ڈرا رہے گا اور پڑا رہے گا۔ تجھ میں ہمت نہیں ہے کہ تو اپنے شترو کا، اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن آج خدا چاہتا ہے کہ جب کوئی تجھے للکارے تو تیرے اندر نرجی آ جائے، تیرے اندر پاور آ جائے، تیرے اندر ول پاور، خدا کی قدرت آ جائے، تیرے اندر خدا کا جلال آ جائے۔ تیرا دشمن جو تجھے للکارتا ہے، ارے للکار کر جائے تو جائے کہاں؟ ارے یہ بھی کسی باغ کی سبزی ہوگی۔ آج میں بتانا چاہتا ہوں تیرا دشمن تجھ سے بڑا نہیں ہے، تیرا دشمن تجھ سے بڑا نہیں ہے، اور نہ وہ کبھی بڑا ہو سکتا ہے، صرف تو نے اپنے آپ کو خود چھوٹا کیا ہوا ہے۔ تیرا دشمن بڑا نہیں ہے، تیری سوچ چھوٹی ہے، تیرا پاور جو میٹر ہے وہ نہیں چل رہا، اس کو آج چلانے کی ضرورت ہے۔ یہاں آج جو ابھی ہم نے چیپٹر پڑھا ہے وہ جاتی جولیت کے حوالے سے ہے۔ کس کے حوالے سے ہے؟ جاتی جولیت کا پتہ ہے؟ جاتی جولیت کا پتہ آپ کو؟ جاتی جولیت ایک فلسطینی ہے، اور یہ فلسطینیوں کا ایک ایسا جنگجو اور ایسا بہادر اور ایسا سپر اسٹار اور ایسا فائٹر ہے جو ہر روز آ کر اپنے بارڈر پر بنی اسرائیل کے لیے اور جماعت کے لیے اور جماعت اور چرچ کے خلاف آ کر للکارتا ہے، تجھے للکارتا ہے، تیرے گھر کے بارے میں للکارتا ہے، تیرے بچوں کو للکارتا ہے، تیری بیٹیوں کو للکارتا ہے۔ ہر روز یہ چوک میں کھڑا ہو کر آ کر للکارتا ہے، تم میں سے کوئی ہے تو باہر نکلے۔ یہ کن کو للکارنا ہے؟ اسرائیل کو۔ اسرائیل کا بادشاہ ساؤل، اور ساؤل بھی جنگجو تھا، اور اس وقت اسرائیل کا بادشاہ بھی ہے، اور اسرائیل کی فوج کا یہ چیف کمانڈر ہے، یہ جنرل ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ اور یہ ساؤل بادشاہ اور اس کے سپہ سالار فوجی جتنے بھی اسرائیل کے کلیسیا کے لوگ، جب یہ شیطان آتا ہے، جب جاتی جولیت آتا ہے، للکارتا ہے، کلیسیا کے لوگ ڈرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیڈر بھی ڈرا ہوا ہے، ساؤل بھی ڈرا ہوا ہے، یہ ہر روز آتا ہے، للکارتا ہے، تم میں سے کوئی ہے نکلو باہر جو میرا مقابلہ کر
के सबकी निकल जाती है। सबके सब सारे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और इसका मुकाबला नहीं करना चाहते। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि साउल की फौज में यिशै के बेटों में से उसके 8 बेटे और उसके 3 बेटे जो थे वो इस फौज के मेंबर थे, फौजी थे, सिपाहीसलार थे और ये भी डरे हुए हैं, सबके सब सहमे हुए हैं। आज आप लोग भी तो डरे हुए हो। कोई काम करना चाहते 10 लोगों से मशवरा करते हो, पहले सोचते हो पैसा वेस्ट ना हो जाए, मैं लगाऊं या ना लगाऊं, बिजनेस स्टार्ट करूं या ना करूं, पता नहीं मैं कामयाब हो सकता हूं कि नहीं, शायद मेरी बेटी कामयाब हो सकती है नहीं, मैं किस पे पैसा लगाऊं। आप हर काम करने से पहले तो डरे हुए हो, जीतोगे क्या? अरे मैदान के अंदर वही जीतता है जो पहले मेंटली तौर से खुद जीत पाता है। मैदान में वो जीतेगा जो खुद पहले अंदर से जीतेगा। आप अंदर से डरे हुए मैदान में क्या करोगे? क्या गिराओगे किसी का? क्या तोड़ोगे किसी का? कुछ भी नहीं कर सकते। पहले आपको, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी समस्या से फतह पाए, विजय पाए, जीते, तो सबसे पहले आपको अपने आप को जीतना होगा। पहले मुझे अपने आप पर भरोसा करना होगा कि मैं जो करने वाला हूं मैं कर सकता हूं, तब तो हर मैदान में जाकर जीतेगा। पहले अपने आप को जीतना होगा, पहले अपने आप पर काम करना होगा। हर रोज आपका ललकारता है, 40 दिन तक ये ललकारता रहा है। और यिशै ने अपने बेटे को कहा, दाऊद को, मेरी पसंद की ये स्टोरी है, ये डेविड मुझे बहुत पसंद है, ये खुदा का बंदा दाऊद, जिसकी स्टोरी जो है हमें मोटिवेट करती है, हौसला देती है कि हम जैसे भी है, जिस तरह से भी है, कमजोर है, नकम्मे है, भेड़ बकरियां चराते हैं, लेकिन जब प्रभु की नजर तुझ पे आती है तो वो भेड़ बकरियों से उठाकर तुझे बादशाह बना देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 40 दिन तक ये जाति चुलियत, शैतान, इब्लीस, ये बीमारी कैसा लाते आपको ललकार रही है और ललकारती है कि तू इस बीमारी से निकल नहीं सकता, तू इस काम में कामयाब नहीं हो सकता, तू ये काम करेगा तो फेल हो जाएगा। लेकिन वहां पर पंडाल सजा हुआ है, एक तरफ फलस्तीनियों की फौज, एक तरफ इस्राएल की फौज, एक तरफ जाति चुलियत अकेला और एक तरफ सारी इस्राएल के फौजी सिपाहीसलार सबके सब वहां पर खड़े हैं और डरे हुए हैं। ये रुसाना आता है, तुम में से कोई भी नहीं निकलता, जमात में से, कलीसिया में से, इस्राएल की फौज में से एक बंदा भी नहीं आता तो इसका जवाब दे सके, इसके साथ बात कर सकते, लड़ना क्या नहीं, इससे बात भी नहीं कर सकते। इस कदर आप हम लोग कमजोर पड़े हुए हैं। लेकिन वहां पर यिशै अपने बेटे को दाऊद को भेजता है और भेजता क्यों है कि जा अपने भाइयों के लिए खाना ले जा, अनाज ले जा। वो काफी दिनों से, 40 दिन से वहां पर जंग के मैदान में है, वो भूखे होंगे, प्यासे होंगे और दाऊद अपने भाइयों के लिए क्या लेकर जा रहा है जी? लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, तीनों टाइम का खाना दाऊद अपने भाइयों के लिए लेकर जा रहा है। और वहां पर यही जाति चुलियत, यही इब्लीस, यही शैतान वहां पर ललकार रहा है और बनी इस्राएल और खुदा की कौम की फजीलत कर रहा है, उनको ललकारता है, उनको ताकत कर रहा है, उन पर उंगली उठा रहा है कि तुम में हिम्मत नहीं है, तुम में ताकत नहीं है कि तुम चर्च बना सको, तुम फतह पा सको, तुम में कोई ऐसा नहीं है कि तुम आगे आओ और जाति चुलियत का मुकाबला कर सको। और जब दाऊद ये अनाज लेकर आता है तो यही आवाज जो 40 दिन से फलस्तीनियों की आवाज, जाति चुलियत की आवाज ये इस्राएली सुन रहे थे, फौजी सिपाहीसलार, तो लिखा है कि ये आवाज किसके कानों में पड़ी? दाऊद के कानों में। आज चाहिए कि खुदा ये आवाज मेरे कानों में पड़े। अगर ये आवाज आपके कानों में पड़ेगी आप शेर बन जाओगे, बब्बर शेर। और इस आवाज को सुनकर आपके अंदर ज्ञान भी जागनी चाहिए। कलाम में लिखा है कि दाऊद ने जब ये आवाज सुनी और वो ललकारा, शैतान ललकारा, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, 40 दिन से ये आवाज सुनी जा रही है, कोई है तो निकालो जो मेरा मुकाबला करे,
लेकिन दाऊद सिर्फ खाना लेकर आया है। वही आवाज जो साउल के कानों में पड़ रही है, वही आवाज जो जज के कानों में पड़ रही है। कोई नहीं उठ रहा, कोई नहीं बढ़ रहा, डर रहे हैं, सड़े हुए हैं कि हम मर जाएंगे, पिट जाएंगे, हमारा ये काम कर देगा तमाम। लेकिन दाऊद के कानों में ये आवाज पड़ी, उसने कहा तुम में से कोई है जो बाहर निकले, इस्राएलियों कोई है? तो ये आवाज दाऊद के कानों में जैसे पड़ी तो कलाम कहता है कि दाऊद के अंदर हलचल मच गई। जब उसके अंदर हलचल मच गई तो कलाम कहता है उसको अंदर से खुदा के बात उन्होंने हिलाया, निचोड़ा और पुश किया और वह उठ खड़ा हुआ और उसने कहा ये कौन होता है जो खुदा की कलीसिया के खिलाफ ललकारता है? ये कौन है जो मेरी कलीसिया के खिलाफ ललकारता है? ये कौन है जो मेरी कलीसिया के बच्चों के खिलाफ ललकारता है? ये कौन है जो संडे स्कूल के बारे में बात करता है? ये कौन है जो हमारे लीडरों के बारे में बात करता है? ये कौन है जो जमात के बारे में बात करता है? ये कौन है जो चर्च के बारे में बात करता है? उसने कहा ये कौन है? इसका मुकाबला मैं करूंगा, इसका मुकाबला मैं करूंगा। और लिखा है कि ये आवाज पहुंची पहले तो उसके भाइयों तक पहुंची। दाऊद की आवाज, दाऊद बातें करने लगा, इसको मैं मारूंगा। अरे अगर आप सुन रहे हो तो बताना चाहता हूं, अरे दुश्मन तेरे लिए दाऊद खड़ा हो रहा है। अरे जाति जूलियन तेरे लिए जुबान में से पहले खड़ी हो रही है। अरे जाति जूलियन मैं तुझे बता देना चाहता हूं, तेरे लिए जुबान में से लड़के लड़कियां बहन भाई बच्चे खड़े हो रहे हैं जो तेरा मुकाबला करेंगे और तुझे मार के लाएंगे यीशु के नाम में। लिखा है कि ये आवाज दाऊद के भाइयों के कानों में पड़ी कि दाऊद यहाँ आया है और वो इस तरह की बातें कर रहा है कि मैं जाति जूलियन का मुकाबला करूंगा। तो उसके भाई क्या करने लगे, शाबाश गुड, तूने बहुत अच्छा काम किया है, तूने चर्च का काम बहुत अच्छा किया है, आगे बढ़ो बढ़ो, ऐसा कहा। बल्कि उसको निराश किया, अबे तू बच्चा है, तुझे अकल नहीं है, तू रोटी लेने आया, तुझे भेजा किसने? मैं जाकर बाप को तेरी शिकायत लगाता हूँ कि ये इस तरह की बातें कर रहे जमात में आकर जंग के मैदान में कि मैं जाति जूलियन का मुकाबला करूंगा। अरे आप सुपरस्टार फौजी, सुपरस्टार फाइटर, हमारा बॉस साउल बादशाह लीडर, अरे फोन करो और तू मुकाबला करेगा, तू ये काम कराएगा, तू चर्च का तमीर करेगा। उसने कहा हाँ मैं करूंगा। आज ये आवाज आपके कानों में पड़ रही है, ये आवाज आपके कानों में पड़ रही है, आपको प्लीज रोक रहा है, आप कुछ करना चाह रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो चर्च के लिए कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन आपके कानों में आवाज पड़ रही है नहीं 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 नहीं, तेरे पास पैसे नहीं आएंगे, कैसे प्रॉमिस करेगा तू खुदा के घर में? और ये शैतान के बैठे उसको बोलिए मैं करूंगा, मैं जो अपने दिल से मेरी आवाज उठ रही है, जो मुंह से बोलूंगा उस काम को करूंगा। और प्लीज आपके कानों में आकर ऐसी बातें करता है जहां पर आपका ईमान कमजोर हो जाता है, लेकिन आप प्लीज को बोलिए मैं करूंगा। भाई भाई उसके बड़े भाई दाऊद के कान में है, छिड़क रहे हैं, तू इसका मुकाबला क्या करेगा, तू बच्चा है। आज भी ऐसा ही होता है, कभी कभी ऐसा होता है बड़े भरा वो आप तू कुछ कर नहीं सकता ते नाल छोटे भी रोक दे, होता कि नहीं ऐसा? घर में ऐसे लोग होते कि नहीं, हर काम में रुकावट, शादी करनी उसमें रुकावट नहीं, दिन आगे ले जाओ, कोई काम शुरू होने में तू तेरे से नहीं है, कोई काम कोई बिजनेस कुछ करना चाहते घर में तो कोई ना कोई ऐसा शरीफ बंदा जरूर होता है जो रुकावट डाले। वो शरीफ बंदे के लिए तारीफ जाओ। और वो शरीफ बंदा जो आपके घर में है, आपके ज़हन में आगे वो कौन है? कोई ऐसा है आपके घर में, कोई ना कोई ऐसा होता है जो आगे फटा डाल देगा, होता है नहीं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात पहुंची साउल के पास पहुंच जाती है। उसने कहा कि दाऊद लड़का है ऐसा, और वो कहता है कि मैं इसका मुकाबला करूंगा। उसने इसको बुलाया, शॉर्टकट करते टाइम शॉर्ट है, तो दाऊद और साउल की मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर साउल उसको कहता है ओके ठीक है तू लड़ सकता है। उसने पता क्या बोला, अरे ये जाति जूलियन क्या है, ये क्या है, ये जाति जूलियन है क्या? अरे मैं अपनी भेड़ बकरियां जब जंगल में चराता था तो मेरी कलीसिया की भेड़ बकरी को, कोई भेड़ बकरी को शेर या रिछ उठाने जाता था तो मैं उसके पीछे जाता था, उसको मारता था और अपनी भेड़ को छुड़ा लाता था, बचा लाता था। ये भी उस
पर्सन रिच या शेर की मानद कोई लुमड़ी होगी। आपने कभी अपने दुश्मन को कहा ये लुमड़ी है यार फटे के पीछे? कहीं अपने दुश्मन को लुमड़ी कहिए आप। सैमसन की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि वहां पर लुमड़ियों का इस्तेमाल किया सैमसन ने। बड़ा जबरदस्त टॉपिक है ये, किसी दिन हम इस पे बात करेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद ने कहा ये भी उसकी मानत हो गया, कोई रिच होगा, कोई शेर भी होगी, इसको भी मार डालेंगे। लेकिन फिर जंग का मैदान सजाया गया, दाऊद को लिबास बनाया गया। दाऊद को बहुत वसी लिबास था, पित्तल का, लोहे का, पूरा बॉडी कवर करना पड़ता था। लेकिन दाऊद ने कहा ये उतार दिया जाए, मैं ऐसे ही फाइट करूंगा। हालेलुया। दाऊद ने कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये तेरे पित्तल है, तांबे, खंजर है, छुरियां, ये चीजें मुझे चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। ये कलाम में लिखा है कि दाऊद जब मैदान में आता है तो मैदान में उतरने से पहले उसने क्या काम किया? चीखने 5 पत्थर लिए। कितने पत्थर लिए? और दाऊद की एक खूबी थी, उसके पास हर वक्त बाइबल, गीतों की किताब और पानी की बोतल या कुछ और चीजें रखने के लिए उसके पास थैला होता था, बैग होता था। आपके पास बैग है? आप अपना थैला लेकर आए चर्च में? क्या किसी के पास बाइबल है, थैला है? किसी के पास कुछ ऐसा है जिसमें आप अपना सामान लेकर आए हो, हथियार जिससे आप पुलिस का मुकाबला कर सके? नहीं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आगे लिखा है कि दाऊद ने 5 चीखने पत्थर लिए और वो अपने थैले में डाले। और एक उसके पास उसकी लाठी थी जो हमेशा रहती थी, एक उसके पास लाठी थी। अब मैदान सज चुका है। अब क्या हुआ है? मैदान सज चुका है। एक तरफ जाति छुड़ियत, एक तरफ दाऊद, एक तरफ बोलिए, एक तरफ जाति छुड़ियत और एक तरफ दाऊद। अब आप अपने आप को दाऊद की जगह पर लेकर आइए, अपने आप को दाऊद की जगह पर लेकर आइए। आप दाऊद हो, सोचिए कि आप दाऊद हैं और आपके सामने आपका दुश्मन है, और वो दुश्मन क्या है? इब्लीस है, जाति छुड़ियत है, बीमारी की सूरत बीमारी है, कर्जा है, लात है, परेशानी है, मुखालफत है, ये दुश्मन है, ये आपकी जो बीमारी है, ये जाति छुड़ियत है, ये हर रोज आपको ललकारती है, धमकाती, परेशान करती है। आप अपने ज़हन में रखिए कि आप दाऊद की जगह पर है, आपने दाऊद की जगह पर पोजीशन ले ली है। और दाऊद के पास एक फ्लाकन होती थी जिसको आप गलेर बोलते हैं आज के ज़माने में। वो गलेर ऐसे होती है, लेकिन जो दाऊद के पास थी फ्लाकन, वो थी पत्थर उसमें डालकर उसको घुमाना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? और फिर वो सही निशाना देकर उसको छोड़ता था दुश्मन की तरफ। आज मैं चाहता हूं कि आप दाऊद की जगह पर आ जाएं। आपके सामने आपका जो भी दुश्मन है उसको आंखों के सामने ले आइए, आंखों के सामने रखिए, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए। आपका दुश्मन जो भी है, जहां कहीं भी है, उसको सामने रखिए और सोचिए। हो सकता है ब्लड प्रेशर हो सकता है शुगर की बीमारी हो सकता है जोड़ों का दर्द हो सकता है जिस्म के अंदर लेने का प्रॉब्लम हो, दर्द हो सकता है कोई कर्जा है जो उतर नहीं रहा, हो सकता है कि आपको पुराने से पुराना रोग है, ये जाति छुड़ियत है जो हर रोज आपका ललकारता है। आंखों को बंद कीजिए और जाति छुड़ियत को सामने लेंगे और तसव्वुर कीजिए आप मैदान में हैं और आपके पीछे चर्च के लोग खड़े हुए हैं और आपके पीछे कलीसिया खड़ी है, आपके पीछे जमात खड़ी है। आंखें खोल लीजिए, आप देखिए मेरी तरफ। अब जाति छुड़ियत को आपने गिराना है, उसको मार गिराना है। और अब ये जाति छुड़ियत जो है हर रोज जो जमात को, आपके घर को, अपने खानदान को, आपके बच्चों को ललकारता है, लेकिन आज ये जाति छुड़ियत बचकर जा नहीं सकता यहाँ से। आज जाति छुड़ियत को बोले अरे बच्चू तेरा आखिरी दिन है, बोलिए अरे जाति छुड़ियत तेरा बच्चू आज तेरा आखिरी दिन है, ऐसे ही बोले जैसे मैं बोल रहा हूँ। बोलिए जाति छुड़ियत को, अपनी बीमारी को बोलिए, अपने कर्जे को बोलिए, अपनी लान को बोलिए, शुगर की बीमारी को, हर तरह के जो कुछ भी जिंदगी के अंदर समस्या है उसको बोले बच्चों तू बच के जा नहीं सकता। आज तेरा आखिरी दिन है। अपनी मुश्किलात को, अपने दुश्मन के दुश्मन है आपका, आप शर्मा रहे हैं, आप अरे भाई आप शर्माते रहोगे, जाति छुड़ियत आएगा आपको कत्ल कर देगा। ऐसे नहीं आप जी सकते, अरे ढीले बलेरो ऐसे नहीं जी सकते। आपको दाऊद की तरह
होश में आना होगा, एक्टिव होना होगा, आपको दाऊद की तरह मैदान में आना होगा। और लिखा है कि एक तरफ दाऊद और एक तरफ जाति जूलियत। और अब दाऊद के पास क्या चीजें हैं? एक गलेल है, पत्थर है, लाठी है और एक थैला है। और जाति जूलियत के पास क्या है? पहले तो सारा वो लोहे पत्थर से लबास से कवर किया हुआ है। क्या है कवर? उसकी कोई बॉडी का हिस्सा खाली नहीं है सिवाय माथे की, ये वाला माथा। और दूसरी बात उसके हाथ में फाइट करने वाला, ब्लॉक करने वाला, रोकने वाला और वार करने वाला जाति जूलियत के हाथ में है कि वो किसी भी बड़े से बड़े पहलवान को क्या कर सकता है? मार गिरा सकता है। और किसी भी बड़े से बड़े अटैक को वो उसका फेस कर सकता है और उसको रोक सकता है। जाति जूलियत पूरी फॉर्म में है और पूरी तैयारी के साथ है। लेकिन दाऊद क्या कहता है? दाऊद जब मैदान में उतरता है तो जाति जूलियत, आपका दुश्मन जो है, वो आकर कहता है, अरे इस्राएलियों, और तुमने कोई पढ़ा नहीं है, बच्चे को भेज दिया। ऐसा होता है? होता है नहीं? ऐसा होता है कभी कभी बच्चे जाते हो क्या आपने भेज दिया या टाइम लिया या किसी पर ढल लिया, होता है नहीं? ऐसे ही हुआ। जाति जूलियत कहता है, अरे भाई इस बच्चे को भेज दिया है, ये बच्चा तो आज मेरे हाथों से मरेगा। लेकिन उस बच्चे के हाथ में क्या थी? सिंपल चीजें, सिंपल कुछ नहीं, एक थैला है, सिर्फ थैला, पत्थर और गिलाफन, ग्लेल जिसको बोलते हैं, एक लाठी। लेकिन मैदान सजा हुआ है। अब जाति जूलियत ने क्या कहा? अरे भाई मैं कुत्ता हूं। ये जाति जूलियत के लफ्ज है, सुन लीजिए। आपके दुश्मनों के लफ्ज मैं आपको बयान करने लगा हूं। आपके दुश्मन जो है वो क्या कह रहे हैं? वो दाऊद को देखकर, आपको देखकर क्या बोल रहा है? अरे भाई मैं कुत्ता हूं जो तुमने इस बच्चे को भेज दिया है, ये डांटेगा, झिड़केगा और कुत्ता भाग जाएगा। किसी बड़े को लाओ जो मेरा मुकाबला कर सके। देखिए वो कितना बड़ा है, पूरी फौज एक तरफ है, साउल भी एक तरफ है, वो अकेला मैदान में खड़ा है, एक बंदा भी बीच में आकर उसका मुकाबला नहीं कर रहा। लेकिन दाऊद आता है। दाऊद किसके नाम से आ रहा है? दाऊद कहता है कि मैं रब और फौज के नाम से आया हूं। किसके नाम से आया हूं? ऊंचा बोलिए, किसके नाम से? ऊंचा बोलिए, ऊंचा बोलिए। दाऊद कहता है मैं रब और फौज के नाम से आया हूं। लेकिन जाति जूलियत कैसे आया है? हथियारों के साथ, पूरी तैयारी के साथ दाऊद सिंह पर आया है। आज मैं भी आपको बता देना चाहता हूं कि जब आप सिंपल तौर से खुदा की हजूरी में आएंगे, सादगी में आएंगे, ईमानदारी के साथ आएंगे, वफादारी से आएंगे, दिल लगा कर आएंगे, तो फिर खुदा आपको आपके शत्रु पर, आपके दुश्मन पर आपको फतह देगा, आपको फतह देगा। दाऊद ने निकाली अपनी फ्लाकर, ग्लेल, उसमें थैले में से निकाला एक पत्थर। और एक बात और सुन लीजिए, साउल बादशाह ने ऐलान किया था कि जो इस साउल को जाति जूलियत को मारेगा, मैं उसको अपनी बेटी मेरब का रिश्ता दूंगा। ये साउल का ऐलान था। उसने कहा कि मैं उस शख्स को जो जाति जूलियत को मारेगा, मैं उसको मेरब का, अपनी बड़ी बेटी का क्या करूंगा? रिश्ता दूंगा। और ये आवाज इसका भी पता था दाऊद को, लेकिन दाऊद इस लालच में नहीं आया। दाऊद के तो अंदर गैरत आई थी कि ये कौन है जो खुदा के चर्च, कलीसिया, जमात के बारे में आकर ललकारता है। और मेरे अजीजों, मैदान सज चुका है। अब एक तरफ जाति जूलियत है, एक तरफ दाऊद है, और दाऊद ने अपने थैले में से निकाला पत्थर और लिया फ्लाकर। पकड़िए जनाब, अपनी फ्लाकर पकड़िए, हाथों को उठाइए, ऐसे पकड़े जैसे जिस चीज को पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे पकड़िए जनाब, खींचिए, पकड़िए, हाथों को ऊपर कीजिए। अरे क्या मेरी आवाज को सुन रही है? पश्तो में बात करूं, बोले मुझे, अरे अपनी फ्लाकर पकड़ो। अरे तू फ्लाकर नहीं घुमा सकता, ग्लेल नहीं घुमा सकता, तू अपने दुश्मन को क्या मारेगा यार? तुझे फ्लाकर घुमानी नहीं आ रही? अरे घुमाना सीखिए, घुमाइए सब फ्लाकर। अरे तेरे सामने ये फ्लाकर जो है, समझिए कि ये जो निशाना आप लगा रहे हो, आपके सामने आपका दुश्मन है। वो कोई भी दुश्मन हो सकता है।
पत्थर छोड़ना है। और जब मैं बोलूंगा 1 2 3 तो आपने हालेलुया का नारा लगाकर जोर से पत्थर क्या करना है, अपने दुश्मन की तरफ फेंकना है। तेरा दुश्मन तेरे पांव के नीचे हो। हालेलुया 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 कीजिए। तेज पानी आनी है, दुश्मन को गिराने वाले हो। तेरा दुश्मन पड़ने वाला है, तेरा दुश्मन गिरने वाला है। एक पत्थर की मार है। सब बोले ए तेरा दुश्मन एक पत्थर की मार है। सभी बोले अरे भाई तेरा दुश्मन एक पत्थर की मार है, फटने जाने वाला है, गिरने वाला है। तेरा दुश्मन चलने वाला, भाई जाने वाला, खत्म होने वाला है। अरे जितना तेज मारेंगे इतनी तेजी से जाएगा, तेरे दुश्मन के ऊपर उसके माथे पर लगेगा। 3 2 और जब 3 बोलूंगा हालेलुया का नारा लगाकर बुलंद आवाज से आपने ईमानदारी के साथ अपनी पिरामिड पर इस पत्थर का मारना है। 1 2 3 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो ये क्या है? वो पत्थर छाती चूड़िया के माथे के ऊपर जाने लगा। कहां पर जाने लगा? देखिए और उसी वक्त तेरा दुश्मन जो है, जो एक पत्थर की मार है। अरे लोगों, अरे फलस्तीनियों, अरे मैं आपको बताना चाहता हूं, अरे और भी छाती चूड़िया हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं मारे। मेरे पास अभी 4 पत्थर और है। अरे छाती चूड़िया 4 निकाल मारे। अरे छाती चूड़िया, अरे 4 पत्थर और मेरे पास। अरे छाती चूड़िया निकल, अरे भागना बेटा को निकल, ललकारिए छाती चूड़िया को जो आपको ललकार रहा था, आप ललकारिए। और दाऊद ने ऐसे किया कि उसने पत्थर छोड़ा और उसके माथे के ऊपर जा लगा और वो गिर गया। और दाऊद ने क्या किया? लुटिया डाली? नहीं, दाऊद ने क्या किया दोस्तों? दाऊद ने जाकर उसकी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, शाबाश। दाऊद ने जाकर छाती चूड़िया की छाती के ऊपर पांव उठाए, सजे वाला पांव उठाए और समझे कि तेरा दुश्मन तेरे पांव के नीचे छाती चूड़िया है। और हालेलुया, खुदा ने कहा कि तेरा दुश्मन तेरे पांव के नीचे कुचला जाएगा। और दाऊद ने क्या किया? अपना पांव उठाकर छाती चूड़िया के छाती के ऊपर रख दिया और उसकी तलवार लेकर खींची और उसकी गर्दन को काट डाला। यीशु के नाम में पकड़िए तलवार, तलवार पकड़िए और अपने दुश्मन का गला काटने वाले वाच। आज तेरा दुश्मन भागकर जाएगा तो जाएगा कहाँ जाएगा? अरे बच्चे तू जाएगा यहाँ, बच्चू तू बचकर जा नहीं सकता। तू एक पत्थर की मार है और तेरी तलवार से तेरी गर्दन काटने वाला। बोलिए शैतान को, बोलिए अपनी समस्या मुश्किलात को, बोलिए तेरी तो गर्दन गई बच्चे, तेरी तो गर्दन गई बच्चे, तेरी गर्दन गई। छाती चूड़िया तुम तो आज। अब मैं बोलूंगा 1 2 3 तो अपने छाती चूड़िया की गर्दन को काट डालना। 1 2 3 हालेलुया मैं आपको बताना चाहता हूं कि छाती चूड़िए आपका दुश्मन आपको हर रोज जो ललकार रहा था, जिससे सारा का सारा घराना परेशान था, एक बच्चा आया। आज भी जमात में से खुदा किसी एक बच्चे को उठाना चाहता है जो सारे काम को बना देगा। दाऊद के पास एक थैला था और उस थैले में क्या था? पत्थर। और उसने निकाला तो 50,000 का नोट निकला। उसने लाकर चर्च में रख दिया। कभी 50,000 का नोट देखा तो 50 नोट दे गए। फिर दाऊद ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और 1000 रुपया निकाला चर्च के प्लस्तर के लिए। फिर दाऊद ने अपनी थैले में हाथ डाला, 500 रुपये का नोट निकाला। फिर दाऊद ने अपने थैले में हाथ डाला तो किसी ने कहा मैं 5 बोरियां दूंगा। 5 अभी 5 बोरियां आने वाली है, कोई ना कोई बोलेगा। फिर दाऊद ने हाथ डाला अपने थैले में, इसलिए मैंने बोला था कि जाति चूड़ियां तक तैयार भी है, जाति चूड़ियां निकाले। मेरे पास 5 और पत्थर है, 5 के 5 ही जाति चूड़ियां गिराएंगे यीशु के नाम में, और गिराएंगे।
हालेलुया। और जब ये थैले में हाथ डालता था, पॉकेट में हाथ डालता था, तो अंदर से डॉलर, पैसे, हदिये, गुजराने, शुक्रगुजारियां निकलती थी और खुदा के घर में देते थे और खुदा का घर यहाँ पर भर गया। जोरदार तारीफ चाहिए, जोरदार तारीफ चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सबक क्या है। थैले में भी 4 पत्थर बाकी है, अभी थैले में भी 4 पत्थर है, आपकी पॉकेट में भी पैसे हैं। हालेलुया। एक पत्थर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन 4 पत्थर अभी क्या है? थैंक यू। ये एक और आ गया, 3 पत्थर और बाकी है। 5 बोरियां। 5। जाओ, यीशु ने जवाब दिए, मेरे रास्ते नहीं, कैसे पानी बोल आवांगे। कोई मेरी टेलीफोन दे देना गलबात नीचे रिश्तेदार में कि रिश्तेदार ने मैंने क्या हुए कि मैं 5 बोल गया। ये पाखरू का काम है। पाखरू के लिए जोरदार तालीम चाहिए, जोरदार तालीम चाहिए, पाखरू के लिए जोरदार तालीम, जोरदार। और लिखा है जब दाऊद ने उसकी तलवार लेकर उसकी गॉड ब्लेस यू, क्या देखो आगे ने ग्लोरियो, जोरदार तालीम जाओ। ये बच्चे कैसे जोरदार तालीम जाओ। तो लिखा है उसकी तलवार लेकर उसकी गर्दन को काट डाला। आज तेरे दुश्मन का हाल ऐसा ही होने वाला है, तेरी बीमारी का हाल ऐसा ही होने वाला है, तेरे घर के अंदर झगड़ा, फसाद, मुसीबत, तकलीफ, जो कुछ भी है, जो भी लाइफ में चलता है, आखिरी दिन है यीशु के नाम में। अगर आप दाऊद की तरह कहेंगे कि मैं रब लफाज के नाम से आया, जब आप रब लफाज के नाम से आएंगे तो तेरा दुश्मन तेरे सामने ठहर नहीं सकता। और पता क्या हुआ? फिर क्या हुआ? जब वो वापस लौटे तो शहर में वापस आए, घर में वापस आए, कलीसिया में वापस आए, तो बहनें बना क्या नारे लगाने लगी। वो नारे लगाने लगी, साउल ने तो हजारों को मारा। साउल ने कितनों को मारा? ऊंची आवाज में, साउल ने कितनों को मारा? तो दाऊद ने कितनों को मारा? लाखों को। दाऊद ने कितनों को मारा? लाखों को। इसका मतलब है कि एक जाति जूलियत अकेला लाखों के बराबर था, जिसके सामने कोई टिक नहीं रहा था, जिसके सामने कोई आ नहीं रहा था। बच्चा आएगा जो अपने बच्चों पे यकीन भरोसा नहीं ना करते, अरे वो ही आएगा और वो तेरे यीशु का सर बुलंद करेगा। और कलाम में लिखा है ये नारेबाजी होने लगी, नारे लगने लगे कि साउल ने हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। अरे मारेंगे जाति जूलियत और बनेंगे साउल तेरे घर का जवाई। कलाम में लिखा है साउल ने क्या कहा था कि जो जाति जूलियत को मारेगा तो मैं अपनी बेटी का उसको क्या करूंगा? अरे भेड़ बकरियां चुराने वाला, भेड़ बकरियां का रखवाला, उसने अजीम काम किया। और पता क्यों किया? क्योंकि वो खुदा के साथ वफादार था, उसका दिल खुदा के साथ जुड़ा हुआ था। खुदा ने जब उसको मसा करना था तो खुदा ने उसके चेहरे पर नजर नहीं की, बल्कि उसके दिल पर नजर की। ये दिल का मामला था, खुदा और दाऊद के दिल का मामला था। जब खुदा को दिल की बातें, दिल के अंदर जो कुछ चलता है, जब खुदा पसंद करता है तो खुदा जमीन से उठाकर तुझे महल तक ले जाता है। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। और ये दाऊद साउल के घर का जवाई बन गया। हालेलुया, बोलिए जरा हालेलुया, हालेलुया। ये कलाम दी गल, ये कलाम दी गल सुना रहा है, क्योंकि साउल ने प्रॉमिस किया था कि जो जाति जूलियत को गिराएगा मैं अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा और घर में उसको दौलत भी दूंगा। और फिर यही दाऊद उसका घर जवाई हुआ और दामाद हुआ। और फिर आगे बात बढ़ती चली जाती है और हम किसी दिन उस टॉपिक की तरफ आएंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक था कि तेरा दुश्मन एक पत्थर की, तेरा दुश्मन एक पत्थर की, और उस पत्थर को आपने इस्तेमाल किया है। और जब आप ईमानदारी के साथ रब लफाज पर यकीन करके भरोसा कर अपने दुश्मन पर अटैक करोगे, तेरा दुश्मन टिक नहीं सकता। वो तो गया, जाति जूलियत गया कि नहीं? कितना जोर लगा रहा था, ललकार रहा था, ये करूंगा वो कर, निकालो किसी को।
अरे तो एक बच्चे की मार है, बड़े को बुला रहे हैं। हमारे चर्च के बच्चे जो है वो जाति चूल्हे को गिराएंगे, वो जाति चूल्हे को मारेंगे, वो जाति चूल्हे को कुचलेंगे, दुश्मन जो है उसको कुचलेंगे। हमारे बच्चे हमारे चर्च का फ्यूचर है, आने वाले ये लीडर है, स्टार है। अपने बच्चों के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे, चर्च के बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हमारे बच्चे बड़े से बड़ा जो भी दुश्मन है चर्च के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ, आपके खिलाफ, हमारे बच्चे मारेंगे उनको। जाति चूल्हे को बोलो, दुश्मन को बोलो, तेरा मेरा मुकाबला नहीं, तो यार एक बच्चे की मार है। बच्चे ने मारा कि नहीं? और वो अपनी शिकस्त पहले ही हार चुका था। उसने कहा मैं कुत्ता हूं। अरे भाई तू है, तू मुंह से इकरार कर रहा है। उसने कहा मैं कुत्ता हूं जो इस बच्चे को बेच दिया। जाति चूल्हे ने कहा मुंह से पहले ही इकरार कर रहा है, हारा हुआ महसूस हो रहा है, तेरा दुश्मन हारा हुआ महसूस कर रहा है और अपने आप को गिरा हुआ और कुचला हुआ और परेशान और बस सेना हुआ। तेरा दुश्मन गया, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है, तेरे दुश्मन का ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है, उसकी शुगर भी आई होने वाली। जाति चूल्हे की आज तू फतह पाएगा, तू विजय पाएगा, लेकिन तेरा दुश्मन गिरेगा। आज यीशु के नाम में आप लोग फतह पाएंगे। यीशु के जलाल के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे, जिसने आज मुझे आपको ताकत दी है, बरकत दी है कि खुदा के कलाम को सुन सके। मैं मान देता हूं आपने आज इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है। अगर आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है तो ये बरकत एक दूसरे को दीजिए, कहिए खुदा आपको और ज्यादा बरकत दे। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत दे। जय मसीह की। खुदा सबको बरकत दे। जय मसीह।